तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू करते हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इस चैप्टर की। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 एंड 13 में ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 3π/4 रेडियन। तो सबसे पहले गिवन मैं लिख देता हूँ, स्टेप 1। यस, वेरी गुड। तो स्टेप 1 वी हैव, क्या है, इंटीरियर एंगल, लेट मी से I इज इक्वल टू 3π/4 रेडियन। इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3π/4 डिग्री में क्या होगा, इट इज 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई विल गेट कैंसल्ड आउट। 4 की टेबल में 2 2 जा 2 90 जा 2 1 जा 2 45 जा 45 into 3 I'll get 135 degree. 135 degree is the interior angle. After that, yes, very good, of each side. After that, we know that interior angle plus exterior angle is always what, 180 degree. Step 2, we know that for polygon, for any polygon, any regular polygon interior angle plus exterior angle is equal to 180 degree. That is I plus E is equal to what, 180 degree. तो I की वैल्यू क्या है, 135 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल E लेता हूँ 180 डिग्री. What will be the answer of E? 180 minus 135. 45 degree. E exterior angle is 45 degree. After that, what am I going to do here is, we also know that exterior angle is 360 divided by n, and that n is nothing but number of sides of polygon. Step number 3. Also, we know that exterior angle E is 360 divided by n, where n is number of sides of polygon. ओके, तो हम पुट कर देंगे E इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n है, तो E की जगह पे क्या पुट करेंगे बोलो बच्चों, 45. तो n क्या होगा, 360 डिवाइड बाय 45. सो n विल बी व्हाट, 8. अरे 45 2 जा 90, फिर 45 4 जा 180, 45 8 जा 360. सही है, 45 1 जा 45 8 जा 360. तो ये हो गया. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. दस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन is how much, 8. So that's it. आसान था. Next, two circles each of radius 7 intersect each other. So let me draw two circles for you. Suppose this is the first circle, this is the second circle. Okay, ये दोनों रेडियस 7 के, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है 7 सेंटीमीटर है. If two circles each of radius 7 centimeter intersect each other, the distance between their centers is 7√2. Let me move this here and this here. Okay. So distance between their centers is given. Okay. So let me say this is the center of this circle
and this is center of this circle. They have given us that this distance is what? 7 root 2. The distance between their centers is 7 root 2 centimeter. Find the area of the portion common to the two circles. इन सर्कल्स को कॉमन जो एरिया है, लेट मी शेड आउट दैट एरिया. ये देखो बच्चों, ये कॉमन एरिया है. आपको समझ में आता है? तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करता हूं बच्चों. अब ध्यान से सुनो. यहां पर व्हाट विल आई डू हियर? आई विल ड्रॉ हियर अ लाइन. ओके, and here also I'll draw a line. Okay, let me call this as center O1, this as center O2. Here also I'll draw a line, and here also I will draw a line. Let me call this point as M and this as N. Okay, first of all what will I do is, radius is given to me. Radius is how much? 7. This is also what? 7. This is also what? 7. This is also what? 7. All four sides are equal. So this might be a square or might be a parallelogram. If it is a square, then the angle must be what? 90 degree. First I will prove that the angle here is 90 degree. ये मैं पहले प्रूव करूंगा बच्चों. पहले मैं क्या प्रूव करूंगा? ये एंगल क्या है? 90 डिग्री. वो कैसे प्रूव करूंगा? ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे देखो. स्टेप 1. कंस्ट्रक्शन समझ में आया सबको? स्टेप नंबर 1. ओके, ज्वाइन. मैं जो गिवन है वही लिख देता हूं. O1 O2, लेंथ ऑफ O1 O2 इज इक्वल टू व्हाट? 7 रूट 2. 7 रूट 2 ये गिवन है. ओके, उसके बाद में नंबर 2, लेंथ O1M, लेंथ O1M is equal to length O2M is equal to length, बोलो बच्चों, O1N is equal to length, बोलो, O2N. It is what? 7 centimeter. ये भी क्या है? गिवन है. गिवन है. सही है. अब बच्चों मैं कंसीडर करता हूं. कंसीडर ट्राइंगल O1M O2. O1M O2 ट्राइंगल कंसीडर करो. मुझे क्या प्रूव करना है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये मुझे प्रूव करना है. तो मैं क्या करूंगा? O1M स्क्वायर प्लस O2M स्क्वायर कंसीडर. 2 मिनट. O1M द होल स्क्वायर प्लस O2M द होल स्क्वायर. ये कंसीडर करता हूं. O1M स्क्वायर. O1M क्या है? 7 है. तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, व्हाट इट इज गोइंग टू बी? 49 प्लस 49. 49 प्लस 49 इज हाउ मच? 98. 98 है. ओके, अब देखो बच्चों, आई विल कॉल दिस एज 1. ऑल्सो कंसीडर O1 O2 का स्क्वायर. O1 O2 का स्क्वायर क्या है? O1 O2 का स्क्वायर, इट इज 7 रूट 2 का स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. रूट 2 स्क्वायर इज 2. अगेन क्या आ गया? 98. तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो O1M स्क्वायर प्लस O2M स्क्वायर इक्वल टू O1 O2 स्क्वायर. ये कौन सा थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कौन सेटिस्फाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. तो हेंस O1M O2 इज व्हाट? 90 डिग्री. 90 डिग्री. आप समझ रहे हो? तो ऐसा मैं ये प्रूफ्स आपको देना चाहता था. आई जस्ट मिनिमाइज दिस पार्ट. So I must say, thus from 1 and 2, O1M square plus O2M square plus O1 O2A equal to O1 O2 का square. Thus
triangle O1MO2 satisfies Pythagoras theorem. So triangle, बोलो बच्चों, O1MO2 is right angle triangle. समझ में आया? Thus major angle O1MO2 is 90 डिग्री. बच्चों ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. एक एंगल 90 तो ये भी एंगल क्या होगा? 90. ये दोनों 90 तो ये भी क्या होंगे? 90 90. Also मेजर एंगल O1 and O2 is equal to मेजर एंगल NO1M N. अच्छा ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. ऑल्सो मेजर एंगल O1 and O2 ये क्या है? 90 डिग्री. Thus quadrilateral O1M O2N is a square. सही है? ओके. अब बच्चों शेडेड एरिया मुझे अगर निकालना है तो शेडेड एरिया कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं. शेडेड एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये ऐसा स्क्वायर है. ओके बच्चों, स्क्वायर है. स्क्वायर में से ये सेक्टर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ये सेक्टर सब्ट्रैक्ट करूं, कितना बचेगा? इतना एरिया बचेगा. सही है? अब इसमें से मैं फिर से ये सेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट करूं, ये ऐसा वाला, तो कितना बचेगा? अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बताता हूं. स्क्वायर में से आप सेक्टर O2MN, ये एरिया क्या करने का मैं बताता हूं. O2MN ये सेक्टर पहला कंसीडर करो, फिर उसके बाद में O1MN ये सेक्टर कंसीडर करो. इन दोनों को क्या करो? ऐड करो. उनको ऐड करने के बाद स्क्वायर का एरिया उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा. कैसे? मैं दिखाता हूं. स्टेप नंबर 2, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. नेक्स्ट पेज पे लू. तो मिनट, तो ये मैं इरेज कर देता हूं. देखो बच्चों कॉन्सेप्ट कैसी है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. कौन सा सेक्टर? O1MN प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो, O2MN माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तब मिलेगा मेरे को. ठीक है? कैसे? मैं आपको इमेजिन करवा देता हूं. देखो O1MN ऐसा एरिया है. ओके, ये ऐसा एरिया. ओके, सुनो ना. अब इसमें ये वाला मैं ऐड कर दूंगा. समझा? कौन सा पार्ट डबल शेड हुआ? अंदर वाला. अब इसमें से एक शेडिंग में निकाल दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा? मतलब यानी मैं इसमें से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये स्क्वायर जो है ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को ये पार्ट मिलेगा. अब समझा? क्योंकि एक बार स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक शेडिंग निकल जाएगी, सिर्फ सिंगल शेडिंग रहेगी, और वो कौन रहेगी? ये. समझ में आया नहीं? तो इसलिए ऐसा है. तो एरिया ऑफ सेक्टर O1MN
एम एन कैसे करते हैं, आर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है ये 90 इक्वल टू आर थीटा प्लस व्हाट आर थीटा माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, सिंगल साइड का स्क्वायर 7 इंटू 7, अरे 7 इंटू 7 इंटू 7, समझता है, ओके। आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू थीटा क्या है पाई बाय 2, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, आर की वैल्यू 7 इंटू पाई बाय 2 माइनस 49, सही बच्चों। अब 7 इंटू पाई बाय 2 प्लस 7 इंटू पाई बाय 2, ट्वाइस 7 इंटू पाई बाय 2, ट्वाइस 7 इंटू पाई बाय 2 माइनस 49, समझता नहीं ये। अब ये 2 क्या हो गया कैंसिल, 7 पाई माइनस 49 इज द फाइनल आंसर। आप ज्यादा से ज्यादा 7 कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा पाई माइनस 7, दैट इज द फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल शेडेड एरिया। तो इस तरह से बच्चों ये देखो ये क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या प्रूव किया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ओ या O1M O2N जो है वो क्या है स्क्वायर है। उसके बाद में शेडेड एरिया निकालने के लिए मैंने कौन सा स्टेप यूज किया, स्टेप 2 में क्या किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर O1MN प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर O2MN, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे आंसर आ गया। लेट मी चेक द आंसर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो टेक्स्ट बुक में फाइनल आंसर कैसे दिया है, उन्होंने डायरेक्ट 49 कॉमन निकाला है। 49 अगर कॉमन निकलेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा पाई बाय, बोलो बच्चों 7 माइनस 1, तो ऊपर वाला भी आंसर एक्सेप्टेड है, ये भी आंसर एक्सेप्टेड है। आपको समझा कि नहीं समझा, देखो 49 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 49 पाई बाय 7, 7 1 7 7 7 49, 7 पाई है, 49 इंटू 1 माइनस 49, तो ये नीचे वाला आंसर भी एक्सेप्टेड है, ऊपर वाला भी एक्सेप्टेड है, और ये दोनों भी नहीं आते तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो तीनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड्स 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। आ गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, यस। तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 18 सेंटीमीटर। इसकी हर साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद में अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ सेगमेंट QR। मान लो मैं इसको Q बोलता हूं और इसको R बोलता हूं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं पे रखते हैं। हाँ, तो क्या है कंस्ट्रक्शन, इधर Q है, इधर क्या है R है, और यहाँ पे कौन है P है। तो QR सेगमेंट लेके एक डायमीटर QR एज अ डायमीटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों QR एज अ डायमीटर लेके यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। हाँ, हो गया, चलो समझ में आ रहा है। QR इज नाउ व्हाट डायमीटर, QR। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे। अब परफेक्ट है। हाँ, QR डायमीटर लेके मैंने इसको बना दिया। इसके बाद में फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के अंदर है बच्चों, ये आर्क आपको दिखाई दे रहा है ना, आर्क, ये देखो ये आर्क दिखाई दे रहा है। ये आर्क का मुझे लेंथ फाइंड करना है, ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर देता हूं बच्चों। यहाँ पे देखो PQR क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब इसके एंगल्स कितने हैं बच्चों,
ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इतना क्लियर है आपको? उसके बाद में अब मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करता हूँ। ये आर्क जो है जो हमें फाइंड करना है उसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एस टी। क्या कर देता हूँ एस टी। तो मैं गिवन डेटा पहले लिख लेता हूँ। गिवन क्या क्या है, गिवन ओके, गिवन क्या है बच्चों देखो, लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर ऑफ सर्कल। सही है बच्चों? ओके सेंटर को क्या ले लो बच्चों, बोलो आप सेंटर को क्या बोलो, ओ बोलो, ओ ओके। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, लेंथ ओ क्यू इज इक्वल टू लेंथ ओ आर इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? उसके बाद में ट्राइंगल पी क्यू आर इज व्हाट, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब आप समझते हो क्या, ईच साइड इक्वल, यानी ईच एंगल कितना 60 डिग्री। मेजर एंगल बोलो बच्चों, मेजर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजर एंगल बोलो पी आर क्यू इज इक्वल टू मेजर एंगल क्यू पी आर। तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। तो इतना डेटा गिवन है और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क एस टी। सही है, ये मेरे को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया आपको? ओके तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए मेरे को क्या फाइंड करना जरूरी है बच्चों, मुझे एंगल थीटा फाइंड करना जरूरी है। कौन सा एंगल थीटा फाइंड करना जरूरी है, ये वाला, आप समझते हो, ये वाला एंगल फाइंड करना जरूरी है। तो मुझे मेजर एंगल एस ओ टी अगर आ जाए, रेडियस तो ऑलरेडी पता है, रेडियस कितना है 9, तो मुझे वो आ जाएगा। देखो बच्चों ये कौन है 9 सेंटीमीटर है, ये कौन है 9 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ओ एस कितना है 9 सेंटीमीटर, ओ टी कितना है 9 सेंटीमीटर। अरे बच्चों थीटा आ जाएगा कैसे, देखो बच्चों ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 9, ये कितना है 9। तो बच्चों ये अगर 60 है और दो एंगल ऑलरेडी 9 है, तो मतलब एंगल्स क्या रहेंगे, ये एंगल क्या रहेगा एसओ क्यू क्या रहेगा 9। अरे ये भी ऊपर का भी एंगल कितना रहेगा, अरे 2 मिनट ये देखो, देखो बच्चों ये अपने आप कितना रहेगा फिर 60, ये कितना रहेगा 60। ऐसा क्यों, आप समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? अरे ये 9 है, ये 9 है, तो अपने आप ये भी क्या है 9 है, तो 60 डिग्री, और ये भी क्या है 60 डिग्री। कैसा रहता है एक्चुअली, ये 9 है, ये 9 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा मान के चलते, तो ये 60, तो ये भी क्या है 60, तो बचा हुआ एंगल क्या है 60। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 60 है, तो देखो बच्चों ये 9, ये 9, ये दोनों साइड सेम है, तो 9 के सामने 60 है, तो ये 9 के सामने भी कितना होना चाहिए 60, तो अपने आप ये एंगल कितना होना चाहिए 60। बच्चों आप मुझे बताओ एस ओ टी कितना रहेगा, वो भी 60 रहेगा। कैसे, क्योंकि 60 प्लस थीटा प्लस 60 कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, 120, 180 माइनस 120, ये भी क्या होना चाहिए 60। आप समझ गए क्या? अब r इंटू थीटा आ गया एस टी। तो ये जो मैंने ओरली करके बताया उसको लिख के भी बताना पड़ेगा थ्योरी एग्जाम में। तो देखो मैं लिख के कैसे समझाता हूँ एग्जामिनर को। देखो बच्चों सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन था वो मैं एग्जामिनर को समझाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ ताकि हम फिर से लिख सकें। हाँ काम शुरू कर दे। हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर स्टेप नंबर 1, कंसीडर ट्रायंगल कोन एस क्यू ओ, यर लेंथ ऑफ ओ क्यू
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OS is equal to what? 9 centimeter. That is equal to what? Radius. Radius of same circle. Same circle. Thus major angle SQO is equal to major angle, बोलो ना बच्चों, QSO is equal to what? QSO. साइड्स के सामने वाले सेम रहेंगे 60 डिग्री. सही है. उसके बाद में नाउ ये कितना आ गया बच्चों फिर 60 डिग्री. अब मेजर एंगल, सो क्लियरली मेजर एंगल QOS ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री. यूजिंग सिमिलर कंडीशंस इन ट्रायंगल TOR, सिमिलरली इन ट्रायंगल व्हाट TOR, मेजर एंगल, बोलो बच्चों, मेजर एंगल ORT इज इक्वल टू मेजर एंगल, बोलो बच्चों, ROT इज इक्वल टू मेजर एंगल OTR इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री. आप समझ गए बच्चों? यानी ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री. अब बच्चों मेजर एंगल QOS प्लस SOT प्लस TOR, इनका एडिशन क्या है 180 डिग्री. तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं. ये पार्ट डिलीट कर देते हैं. तो मैंने लिखना चाहिए, बोलो बच्चों, स्टेप नंबर 2, बोलो मेजर एंगल SOQ प्लस मेजर एंगल SOT प्लस मेजर एंगल TOR इज इक्वल टू कितना चाहिए 180 डिग्री. अब इसको मैं थीटा पकड़ लेता हूं, इसको थीटा पकड़ लेता हूं. ओके चलो. तो SOQ कितना है 60 डिग्री. मेजर एंगल SOT कितना है SOT, वो भी क्या है थीटा है. TOR 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो थीटा कितना होगा 180 माइनस 60 तो ये कितना हो रहा है थीटा 180 माइनस 120 यानी कितना हो रहा है 60. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. थीटा आ गया बच्चों. अब स्टेप 3 लेट लेंथ ऑफ आर्क कोण ST इज इक्वल टू S इज इक्वल टू R थीटा. थीटा को कैसे लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? थीटा इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 मतलब कितना हुआ पाई बाय 3 रेडियन. सही है. तो R की वैल्यू क्या है 9 है इंटू पाई बाय 3 कितना हुआ बच्चों 3 पाई सेंटीमीटर. तो आंसर आ गया. दिस इज द फाइनल आंसर. लेंथ ऑफ आर्क ST कितना है 3 पाई रेडियन. आसान था या डिफिकल्ट था? आसान. तो कैसे किया आपको समझा? सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा मुझे. ये थीटा जरूरी है फाइंड करने के लिए. फिर ये सारे ये प्रूव किया. पहले थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री वो प्रूव किया. फिर R थीटा आसान है. चलो आगे बढ़ते बच्चों. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल in which the central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 centimeter. Find radius of circle in which central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4. बहुत आसान समय.
तो सबसे पहले तो कोई रेडियस है जो एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। ये हम ऐसे कर देते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री और इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4, यानी एस का वैल्यू दिया है, एस का वैल्यू 37.4 सेंटीमीटर है। बस हो गया ना, रेडियस फाइंड करना है, एस इक्वल टू आर थीटा। पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना। स्टेप 1, थीटा इक्वल टू 37.4 डिग्री, तो 37 थीटा इज 60 डिग्री, सॉरी थीटा इज 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 3 रेडियन हो गया। इसके बाद में स्टेप 2 क्या करेंगे, बोलो बच्चों। स्टेप 2, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस की वैल्यू 37.4, आर की वैल्यू नहीं पता, आर यू निकालना है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, तो निकाल लो 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 37.4 इंटू 3 कर लेना आप हाथ से, 37.4 इंटू 3 इक्वल टू, ये गलत है 444 थोड़ी आता है, चेक करो। हंड्रेड एंड 12.2 आएगा आंसर, 112.2 डिवाइडेड बाय पाई, so this is 112.2 pi centimeter is the radius. Let me check. Sir, we can put the value of pi. हाँ, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सही है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, आर क्या होगा बोलो, 37.4 इंटू, और ये ऐसे करो इंटू 3, 22 डिवाइड बाय 7, तो 7 ऊपर जाएगा, 7 इंटू 0.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22। आप लॉग टेबल यूज़ करो, नहीं तो फिर ओरली करो। ये कितना आया, 37.4 इंटू 3 इज 112.2, 112.2 इंटू 7 कितना होता है, करो बच्चों, आप करो, हाथ से करना, 100 इंटू 7, 785.4, ये 785.4 डिवाइडेड बाय 22 है, फिर ये कैल्शियम में नहीं अलाउड है आपको, ये 11, ये क्या रहेगा, 7 1 7, 7 6 9 18 और 2 2 4 7 फिर 392.7 को 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं, 392.7 डिवाइड बाई 11 ना, बोलो 392.7 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 ज़ा 33, 62, 5 ज़ा 55, रिमाइंडर कितना है 7 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0.7 है ना, 0.7 ज़ा 7.7 ज़ा राइट, रिमाइंडर 0, 35.7 इज द आंसर, तो 35.7 इज द आंसर, 35.7 सेंटीमीटर इज द रेडियस। तो ऐसे भी रख दिया तो भी चलेगा, या फिर ऐसे, यस यस दोनों भी एक्सेप्टेड है। लेट मी चेक विद द टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल नंबर 4, 35.7 सेंटीमीटर एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, रफ वर्क।
बाकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो आप कर सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज बेंड सो एज टू फॉर्म आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके 2 मिनट। वायर, एक वायर है, उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। मतलब देखो बच्चों, वो वायर पहले ऐसा था 10 सेंटीमीटर, उसको बेंड करके कैसे किया, ऐसे किया, सही है। ओके, अब भी ये क्या है बोलो बच्चों, ये क्या है, अभी भी ये क्या है 10 सेंटीमीटर। ये कौन है बिफोर, ये कौन है आफ्टर। समझते हैं, बचाओ मत। ओके, तो इसने आर्क ऑफ अ सर्कल बनाया। इस आर्क ऑफ सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस दे दिया है, इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस 4 सेंटीमीटर बना है। ओके, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन डिग्री, थीटा फाइंड करना है। कितना आसान है, ये गिवन है। चलो बोलो बच्चों, एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। एस की वैल्यू क्या है 10, आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू थीटा। थीटा आ गया 10 डिवाइड बाय 4। ये किस में, रेडियन में, 5/2 रेडियन। ये आंसर है, नहीं तो फिर इसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करो, 5/2 इंटू बोलो 180/5, तो 2 1 जा 2 90 जा 90 इंटू 5 कितना होता है 450 होता है। यस 9 5 45, 450 डिग्री डिवाइड बाय पाई। इसको ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम आता नहीं। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, आसान था। नेक्स्ट सम, इफ टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ द रेडार। ऐसा सम हमने किया है बच्चों, तो ऐसा सम हमने किया हुआ है। एक सर्कल है, इस सर्कल के केस में देखो एंगल कितना बना रहा है 65 डिग्री। इसमें मान लो एंगल बना रहा है 65 डिग्री। इसको थोड़ा बना देता हूँ मैं। एंगल मान लो बन रहा है 65 डिग्री ओनली, 65 डिग्री। ओके, ये लेंथ 1 है। ओके, और ये कौन है बच्चों थीटा 1। उसके बाद में, और इसका रेडियस कौन है r1। उसके बाद में सेकेंड केस में क्या हो रहा है बच्चों, सर्कल बन रहा है। जाहिर है ये थोड़ा छोटा सर्कल होगा, इसलिए सेम लेंथ के लिए एंगल कितना बन रहा है 110 डिग्री। तो केस 2 में बच्चों 110 डिग्री, ऐसा कुछ तो भी होगा। ये थीटा 2 इक्वल टू 110 डिग्री, और लेंथ जो है बच्चों, ये लेंथ मान लो L2 है। अब गिवन क्या है, L1 और L2 दोनों क्या है सेम है, ठीक है। L1 L2 नहीं बोलते हम इसको S1 S2 बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे बोलो S1, इसको S2 चलेगा। हाँ, इसको क्या बोलेंगे R2, ये भी कौन है R2। तो बच्चों सुनो, यहाँ पे S1 क्या होगा R1 थीटा 1, यहाँ पे S2 क्या होगा बोलो R2 थीटा 2। सही है। ओके, गिवन क्या है, गिवन S1 इक्वल टू S2 गिवन है, सही है। उसके बाद में थीटा 1 की वैल्यू गिवन है 65। थीटा 1 कितना है 65 डिग्री। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 65 इंटू पाई बाय 180 कितना होता है बोलो बच्चों। 5 का टेबल यूज करो ना, 5 36 जा राइट, 5 1 जा 3 जा, तो 13 पाई बाय 36। 13 के टेबल में 36 नहीं आता, तो आंसर क्या है 13 पाई बाय 36। और थीटा 2 कितना है बोलो 110 डिग्री। 110 कैसे रहता है 110 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कट, 11 पाई बाय 18 इज द आंसर राइट। तो 11 पाई बाय 18। तो बच्चों सॉल्यूशन में स्टार्ट कर देता हूँ। सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, S1 अपॉन S2 ले लेंगे, तो क्या रहेगा R1 थीटा 1 अपॉन R2 थीटा 2। लेकिन S1 और S2 दोनों सेम है, गिवन है,
उसको एस बोलता हूँ, से। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, एस अपॉन एस, है ना। उसके बाद में थीटा 2 वो साइड मल्टीप्लाई होगा, बाद में करते हैं। एस अपॉन एस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R1 θ1 इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे शुरुआत करो बच्चों, ऐसे शुरुआत करो, रुको 2 मिनट, इसको ऐसे बोलने की भी जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीका। सॉल्यूशन गिवन, बोलो S1 इक्वल टू S2, तो R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2। अब सही है, बहुत आसान तरीका। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, θ2 अपॉन θ1। तो R1 अपॉन R2, बोलो θ2 की वैल्यू क्या है, 11 पाई बाय 18, और θ1 की वैल्यू क्या है, 13 पाई बाय 36। तो बच्चों बहुत मज़ेदार है ये, पाई पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 11/13 एज इट इज, ये नीचे क्या रहेगा, 18 रहेगा, और 36 का जाएगा ऊपर, 18 1 जा 18 2 जा 11 2 जा 22, 22:13 इज द आंसर। तो R1 अपॉन R2 आंसर आ गया 22 अपॉन 13। या फिर ऐसे करो, R1 इज टू R2 कितना आया, 22:13 इज टू 22:13, खत्म। लेट मी चेक, ट्वेंटी 22:13 सही है, या 13:22 वो भी चलता है। यस, R1 इज टू R2 22:13, लेकिन R2 इज टू R1 अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, 13:22। तो MCQ में कैसे पूछा गया है उस हिसाब से आप कर सकते हो, अगर MCQ के क्वेश्चन है तो। द एरिया ऑफ सर्कल इज 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एट एन एंगल ऑफ 300 डिग्री एट द सेंटर एंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो ऐसा भी सम्स हमारे हो चुके हैं, मैं इसको करके दिखाता हूँ। एक सर्कल है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, गिवन में लिख देता हूँ, गिवन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज हाउ मच, 81 पाई। ओके, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 81 पाई, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81, यानी रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सर्कल का रेडियस है 9। ओके, सबटेंडिंग एंगल 300 डिग्री एट द सेंटर, ये 9 सेंटीमीटर का सर्कल है, 300 डिग्री मतलब ऐसा यहाँ तक आएगा, ये 300 डिग्री, थीटा इक्वल टू 300 डिग्री। ओके, एंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर सबटेंडिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल 300 डिग्री एट द सेंटर एंड ऑल्सो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ओके बच्चों, तो आपको फाइंड क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये आर्क दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में दिखाता हूँ मैं, ये पूरा, ये आर्क का लेंथ आपको फाइंड करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मैं S मानूंगा, वो फाइंड करना है। उसके बाद में एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर उसी को मैं एरिया ऑफ सेक्टर कह रहा हूँ, ये सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। काम चालू कर देते बच्चों। थीटा इज व्हाट, 300 डिग्री, तो 300 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कट, ये क्या रहेगा 3 6 जा 3 10 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 रेडियन, ये रेडियन में है, इज द एंगल। ओके बच्चों, मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। तो पहला लेंथ ऑफ आर्क क्या रहता है, एस आर थीटा, आर कितना है 9, थीटा क्या है 5 पाई बाय 3। तो ये कैसा रहेगा बच्चों, 3 1 जा 3 3 जा
3 5 15 pi. 15 pi. 15 pi centimeter is the length of arc. Second, area of sector. क्या रहेगा? Area of sector A half r square theta, half 9 square into 5 pi by 3. तो बच्चों आ जाएगा ये भी. मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. चलो, तो हाफ इंटू बोलो 9 स्क्वायर इज 81, या फिर 9 स्क्वायर को मैं 9 इंटू 9 लिखता हूँ, इंटू 5 पाई बाय 3. बच्चों 3 1 जा 3 3 जा, ओके 9 3 जा 27, 27 इंटू 5, तो 27 इंटू 5 135, सॉरी 125. 27 into 5 135, right? 26 5 are 130, 26 27 5 are 135, 135 into pi divided by 2, 135 pi divided by 2 centimeter square. Let me check. Yes, 135 pi by 2 square centimeter बोलो या centimeter square बोलो. 135 pi बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों भी आंसर सही है बच्चों. आगे बस यहाँ तक करो, नेक्स्ट करते हैं, 8th करते हैं बाद में.